So good morning, everybody. I'm Pooja Sharma, your EVS teacher, and welcome to online classes of Real Public School. Okay, today we'll start our EVS chapter number 18. Okay, and chapter name is different types of houses. Clear? So let's start. You see different types of houses around you. Some are kacha houses and some are pakka houses. Some are single-storied and some are multi-storied. Various types of materials are required for the construction of these houses. Some of these houses constructed are very much grand and attractive like palaces. Okay, आपने सबने अपने around all around में different kinds के types के houses हम see करते हैं. Okay, इसमें से कुछ जो houses होते हैं वो कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं. Okay, and some houses are पक्का houses. Okay, and some houses are single storied. Okay, कुछ house जो होते हैं वो single story होते हैं. Okay, only वहाँ पे, and जो कुछ houses हैं that are multi stories. Okay, उसमें 2 या 3 stories होती हैं. Okay, and इन houses को construct करने में, इन houses को build up करने में, बनाने में different kind का जो material है वो use किया जाता है. Okay, different kinds का जो material है वो use किया जाता है. एंड कुछ हाउसेस बहुत ही ज्यादा ग्रैंड मींस बिग और अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं. ओके, लाइक पैलेसेस. ओके, महल की तरह कुछ हाउसेस होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं. नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. First one is observe different type of houses in your nearby area and tell which material are used for their construction. So when we observe our nearby houses in our area, so in our nearby area there are stone, sand, bricks, cement, iron rod, etc. are used for construction of houses. Okay, अगर हम अपने nearby areas में आसपास के जो houses हैं उन्हें हम देखते हैं तो उन्हें build up करने में, construct करने में, बनाने में कौन सा किस तरह का material use किया जाता है? Sand, stone, bricks, cement and iron rod, etc. Clear? नेक्स्ट इज वेयर आर दीज मटेरियल अवेलेबल इन योर एरिया. ओके, एंड ये जो मटेरियल है जो हाउस बनाने में प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, ओके, वो कहाँ पर अवेलेबल होता है? सो दीज मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द शॉप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स. ओके, स्पेसिफिक शॉप होती है. जिस तरह से हम ग्रोसरी लेने के लिए ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं ना, क्लोथ्स बाय करने हैं तो हम उस टाइप की जो शॉप्स है वहां जाते हैं. सेम लाइक दिस जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये भी आपको बिल्डिंग मटेरियल्स की जो शॉप्स होती हैं वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाता है. Clear? Next is what type of roofs do these houses have? और ये जो houses होते हैं इनका roof कैसा होता है? So some roofs are made up of sand and brick, and some are also constructed by filling the cement and concrete in a structure made up of iron rod, which are called RCC roofs. Okay. सो इसमें से कुछ जो रूफ्स होती हैं वो तो सैंड और ब्रिक से मेड अप होती हैं. ओके, एंड सम जो रूफ्स होती हैं उनमें क्या फिल किया जाता है? आयरन रॉड्स की एक स्ट्रक्चर बनी होती है. ओके, उसमें सीमेंट एंड कंक्रीट को मिक्स करके उसमें फिल किया जाता है. ओके, एंड इनकी जो ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये बहुत ज्यादा इस टाइप की रूफ्स होती हैं. ओके, एंड इन्हें हम आरसीसी रूफ कहते हैं. क्लियर? Now next question is which material have been used in the construction of your house? आपके house को construct करने में, build up करने में किस तरह का material use किया गया है? So sand, stone, bricks, cement, iron rod, etc. have been used in the construction of our houses. Okay, हमारे houses को बनाने में ये सारा जो material है वो use किया जाता है. Okay. Next one is how does your house protect you in summer, winter and rainy season? Summer, winter and rainy season में आपका जो house है, okay, आपको कैसे protect करता है? So our houses have our house protect us from the effects of summer, winter and rainy season. Okay, because जो हमारा house है वो हमें इन सब जो summer है, winter है या जो rainy season है उससे protect करता है. Okay, because हमने अपने house को construct करने में stone, brick, cement and iron rod इन सब का use किया. Okay, and ये हमें summer, winter and जो rainy season है उससे क्या provide करवाता है? Protection provide करवाता है. Okay. Next is what are the facilities available in your houses for fresh air and light? Fresh air and light के लिए आपके house में क्या facilities available हैं? So our houses have a proper availability of fresh air and light. Okay.
there are the doors and window are in front of each other so that along with light there are a proper crossing of air. Okay, आपके घर में अगर आप एयर की प्रॉपर वेंटिलेशन चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए जो डोर्स एंड विंडो है वो एक दूसरे की इन फ्रंट ऑफ एक दूसरे के सामने रखी जाती है, ताकि जो डोर से एयर आती है वो विंडो से क्रॉस होती हुई क्या हो जाए, पास आउट हो जाए। इस तरह से एयर की क्या होती है, क्रॉसिंग होती है, प्रॉपर क्रॉसिंग होती है। इससे जो घर है उसमें वेंटिलेशन बना रहता है एंड एयर जो लाइट है वो भी प्रॉपरली डोर एंड विंडो से आपके घर में अवेलेबल हो जाती है। क्लियर? Whether the houses is pakka or a kacha house, there should be a proper availability of fresh air and light. Okay, जो house है वो चाहे कच्चा house हो या फिर पक्का house हो, but वहाँ पर जो air fresh air है and जो light है उसकी proper availability होनी चाहिए। Okay, available होनी चाहिए वहाँ पर हमारे use के लिए। This will keep us healthy, और ये हमें क्या रखती है, हेल्दी रखती है। okay? You all know कि जो फ्रेश एयर है वो हमें हेल्दी रखती है, तो हमारे घर में ही इजीली हमें फ्रेश एयर अवेलेबल होगी, लाइट आएगी प्रॉपर हमारे हाउस में, तो हम हेल्दी रहेंगे। Observe the building of your school. There are doors and window must be in front of each other so that along with light there will be a proper crossing of air. इसी तरह आपने अगर अपनी स्कूल बिल्डिंग को भी ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि जो डोर एंड विंडो है वो एक दूसरे के क्या है, इन फ्रंट, एक दूसरे के सामने है। ओके, इससे क्या होता है, प्रॉपर लाइट तो आपको अवेलेबल होती है। ओके, जो एयर की क्रॉसिंग है वो भी वहां पर एकदम प्रॉपरली होती है। क्लियर? See in the picture, first picture is houses in a desert area. Okay, desert area में इस तरह के houses बनाए जाते हैं, houses in a housing board colony. Okay, एक जो colonies बनाई जाती है उसमें एक तरह के similar same दिखने वाले houses बनाए जाते हैं। Okay, उनका construction जो है, जो उनका जो architecture है वो same होता है। Okay, next is multi story. Okay, इसमें देखिए यहाँ one by one बहुत सारी stories आपको दिखाई दे रही होंगी, that is multi story. Now come to next one. See in the picture, workman and laborer constructing a house. Okay, यहाँ पर देखिए जो workman है और laborer है ये house को construct कर रहे हैं। Now think and answer these. The roof of some of the houses are made up of pantiles, means khaprel and bamboo. What is its benefit to the people लिविंग इन दीज हाउसेस? ओके, यहाँ पर एक कच्चा हाउसेस की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, जो कुछ हाउसेस होते हैं उनकी जो रूफ होती है, छत होती है, वो किससे, बैम्बू से, और खपरैल में जो घास फूस होती है, ओके, उसका यूज करते हुए, ड्राई जो ग्रास होती है, ओके, उसे हम खपरैल या पेंटाइल्स कहते हैं, उससे बनी हुई वो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, ओके, उनका यूज करते हुए हाउसेस की रूफ बनाई जाती है। तो इस तरह के जो पीपल हैं उनको, जो इन हाउसेस में रहते हैं, उनको क्या बेनिफिट होता है? So this type of houses have proper ventilation and availability of fresh air and light. These type of houses are very cheap. Okay, जब इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो ये बहुत ही चीपली, सस्ते में ये सारे जो मटेरियल है ये अवेलेबल हो जाता है। ओके, तो इस घर को बनाने में ज्यादा आपको मनी भी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ती। Okay, these houses protect the people from the effect of summer, winter, and rainy season. And the roofs of pantiles are very sloping, so that sand of desert area cannot store on it. Okay, and जो पेंटाइल से या फिर खपरैल एंड बैम्बू से बनी हुई जो रूफ होती है वो क्या होती है, स्लोपी रूफ होती है। ओके, तो डेजर्ट एरिया में जब भी सैंड आती है, जब भी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, ओके, तो वो अपने साथ क्या करती हैं, सैंड को भी ब्लो करके लेके जाती है ना, तो वो स्लोप की वजह से जो डेजर्ट सैंड है वो इन रूफ्स पर स्टोर नहीं होगा। ओके, सी इन द पिक्चर दिस वन। ओके, इस तरह से जो ये ड्राई ग्रास है एंड बैम्बू को यूज करते हुए पेंटाइल से ये रूफ मेड की गई। ओके, यहाँ पे स्टोन अगर सैंड आती है अगर, ओके, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, तो वो इस पर, इस टाइप की रूफ पर वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि स्लोप होके कहाँ जाएगी, नीचे फॉल डाउन हो जाएगी। क्लियर? नाउ next is high speeds and storms blow in the desert area. What is the advantage of the sloping roof there? Okay, तो जो डेजर्ट एरिया है उसमें स्ट्रॉन्ग जो विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लो होते हैं, तेज हवाएं चलती हैं हाई स्पीड से, तेज स्पीड से, तो जो स्लोपिंग रूफ होती हैं जिन हाउसेस की, उनको क्या एडवांटेज होता है, उनको इसका क्या बेनिफिट मिलता है इस तरह की रूफ्स बनाने का? So due to sloping roof of desert area, sand cannot store on the roof of the houses. Okay, अभी हमने डिस्कस किया कि जो sand है वो houses की roof पर store नहीं हो पाती। Clear? Next is, for the construction of a house, which material is available in your area
and which material is outsourced. Okay, अगर आप एक हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं तो कौन सा मटेरियल है जो आपके एरिया में इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, कौन सा मटेरियल है जो कि आपको आउटसोर्स करना पड़ता है, okay, बाहर से आपको मंगवाना पड़ता है. So sand, bricks and stone are available in our area for the construction of houses, but cement and iron rods are outsourced material. Okay, cement and जो iron है वो outsourced material है. Clear? Now next, those area in which the rocks are easily available, there the roofs and walls of the houses are made up of rocks. The roofs and walls of the houses are made of sand and brick in those area where rocks are not easily available. Okay, जिन areas में रॉक्स इजीली अवेलेबल होती हैं तो वहां पर हाउसेस की जो रूफ्स हैं एंड वॉल हैं वो किससे मेड अप की जाती हैं, रॉक से. ओके, बिकॉज वो वहां पर इजीली अवेलेबल है. बट जिन एरियाज में जहां पर रॉक्स इजीली अवेलेबल नहीं है वहां पर जो रूफ्स एंड वॉल्स हैं हाउसेस की, दैट आर मेड अप ऑफ सैंड एंड ब्रिक्स. क्लियर? Nowadays, the roofs are also constructed by filling the cement and concrete in a structure made up of iron rods. These are called RCC roofs. Okay, RCC means reinforced cement concrete. Okay, RCC is a process when plain cement concrete which is a mixture of cement. Okay, मिक्स किया जाता है उसे. ओके, एंड उसे फिल किया जाता है इस आयरन रोड के बीच. ओके, इन बिटवीन जो स्पेस है. It is generally a concrete that contain iron rods. Okay, सो आरसीसी रूफ्स में क्या किया जाता है, नाउ डेज आपने अगर हाउसेस जहां पर भी कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा आपने देखा होगा इस तरह की आयरन रोड्स वहां पर होती हैं. ओके, तो उनमें सीमेंट एंड जो कंक्रीट है उसे मिक्स करके ये मिक्सचर को वहां पर फिल किया जाता है. ओके, इससे रूफ जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है. क्लियर? In the areas near the forest and hilly areas, there is abundance of tree. Therefore, more wood is used for the construction of the houses in these areas. Okay, and जो ऐसे areas जो forest के near है या फिर hilly areas है वहाँ पर जो trees हैं वो वहाँ पर more quantity में, okay, ज़्यादा quantity में वहाँ पर available होते हैं. Okay, सो दैट्स वाई वहां पर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने में वुड का यूज ज्यादा किया जाता है. जिस एरिया में जो चीज इजीली अवेलेबल होती है एंड मोर अमाउंट में ज्यादा अवेलेबल होती है तो वहां पर उसी को उस कंस्ट्रक्शन में उस चीज का क्या किया जाता है, यूज ज्यादा किया जाता है. तो सेम लाइक दिस फॉरेस्ट एंड जो हिली एरियाज हैं वहां पर ट्रीज आपको इनफ मिल जाएंगे. ओके, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रीज होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं. ओके, वुड वहां पर इजीली अवेलेबल होती है. सो इसलिए वहां पर क्या होता है, हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने में इसका जो यूज है वो ज्यादा किया जाता है. ओके, these days some people migrate from villages to the cities in search of employment. Okay, and आजकल people भी village to city in search of employment या job की search के लिए migrate करते हैं. Okay, one place to another place move करते हैं, due to which in the cities are land availability is less when compared to the increasing number of people. इसलिए सिटी में नंबर ऑफ जो पीपल है वो जल्दी इंक्रीज हो रहा है. ओके, बट वहां पर जो लैंड है वो उसी प्रोपोर्शन में अवेलेबल नहीं है. जितना वहां पर पॉपुलेशन है सिटीज की उसके अकॉर्डिंग लैंड अवेलेबल नहीं है. However, everybody needs a house to live. Therefore, the houses are constructed close to each other. And हर किसी को रहने के लिए घर की जरूरत है. ओके, नीट है. सो वहां पर जो हाउसेस का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही क्लोजली किया जाता है, एक दूसरे के पास पास में घर बनाए जाते हैं. एंड दिस इज द रीजन दैट मल्टी स्टोरीड हाउस हैव आल्सो टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द बिग सिटी. ओके, ये भी एक रीजन है कि बिग सिटीज में मल्टी स्टोरीड जो हाउसेस हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि कम लैंड पे, ओके, लैंड तो वो कम होती होगी बट उस पर बहुत सारे जो स्टोरीज बनाकर एंड बहुत सारे हाउसेस प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं. ओके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है, बिकॉज सिटीज में लैंड की अवेलेबिलिटी कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ पीपल. ओके, पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है एंड जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो कम है. दैट्स व्हाई वहां पर मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती है. In the given figure, a multi-storied house is shown. There is a common roof in these type of houses. Similarly, the staircase and the elevators are also common and used by all the people living here. Okay,
एंड इस तरह की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उनकी रूफ भी क्या होती है, कॉमन होती है। ओके, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पे जो हाउसेस हैं तो उसकी रूफ पर सेकंड फ्लोर बनाया जाता है एंड उसकी रूफ पर थर्ड फ्लोर। तो इस तरह से सबसे जो टॉप फ्लोर होता है सिर्फ वहीं पर रूफ अवेलेबल होती है। ओके, तो उस बिल्डिंग के सोसाइटी के जो सारे लोग हैं उसी रूफ को यूज करते हैं। ओके, एंड इसी तरह से जो उनकी स्टेयरकेस है, सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, ओके, एलिवेटर में लिफ्ट है वहां पर, तो वो भी वहां पर रहने वाले पीपल हैं वो उन्हें क्या करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं कि वो सबके लिए अवेलेबल होती है। आप सब पीपल जो है उन स्टेयर्स केस को या फिर जो लिफ्ट्स हैं उसे यूज कर सकते हैं। ओके, so now I am going to finish this topic here. Our next topic we will continue in our next class. Okay, thank you students.